السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، برطانیہ کے اگر ہم رقبے کی بات کریں تو 2,42,900 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ یہ دنیا کا 78ویں نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے۔ برطانیہ کے 4 ممالک کے مشترکہ رقبے میں 54% رقبہ انگلینڈ، 32% اسکاٹ لینڈ، 9% ویلز اور صرف 3% رقبہ شمالی آئرلینڈ میں آتا ہے۔ یہ برطانیہ کا رقبہ صرف ان 4 ممالک کا بتایا گیا ہے، جبکہ برطانیہ کے مقبوضہ سمندر پار جزائر کا رقبہ اور انٹارکٹیکا کے برطانیہ مقبوضہ علاقے اس فہرست میں شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ ویسے آپ کی معلومات کے لیے بتا دیتا ہوں کہ برطانیہ کے سمندر پار 14 مقبوضہ علاقوں کا اگر رقبہ دیکھا جائے تو وہ برطانیہ کے ان 4 ممالک کے علاوہ 17,27,570 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ اگر اقوام متحدہ کی جانب سے ان 14 مقبوضہ علاقوں کا رقبہ بھی برطانیہ میں شامل کر لیا جائے تو یہ رقبے کے لحاظ سے 78ویں نمبر سے دنیا کا 13واں بڑا ملک بن جائے گا۔ ان 14 مقبوضہ علاقوں کی آبادی 2,50,000 کے قریب ہے، جبکہ برطانیہ کے 4 ممالک کی آبادی ان کے ساتھ شامل کرنے کے بعد کل آبادی 6,60,00,000 ہو جائے گی، اور یہ ملک آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 22ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ برطانیہ کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو برطانیہ کا نام یورپ کے دیگر ممالک سے اس خطے میں ہجرت کر کے آنے والے بریٹن قبائل کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ قبائل آج بھی برطانوی ریاست ویلز میں رہتے ہیں۔ برطانیہ ایک آئینی بادشاہت ہے جو دولت مشترکہ کے 16 ممالک کی طرح ملکہ الزبتھ دوم کو اپنا حکمران تصور کرتی ہے۔ برطانیہ ابھی تک یورپی یونین کا ممبر ہے۔ جون 2016 میں یورپی یونین کی رکنیت کے حوالے سے ریفرینڈم کروایا گیا تھا، جس میں 51% لوگوں نے یورپی یونین کی رکنیت ختم کرنے، جبکہ 48% لوگوں نے یورپی یونین کی رکنیت برقرار رکھنے کے حق میں ووٹ ڈالے تھے۔ 15ویں صدی کے دوران آئرلینڈ سے اپنی بنیاد قائم کرنے والی دنیا کی عظیم ترین سلطنت، جسے سلطنت برطانیہ کہا جاتا ہے، اتنی بڑی اور وسیع تھی کہ اس سلطنت میں کبھی سورج غروب نہ ہوتا تھا۔ اسی سلطنت نے آج برطانیہ کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی کا آج کے برطانیہ کی شان و شوکت میں بڑا کردار رہا ہے، جس نے خانہ جنگی کے ذریعے اور اپنے شیطانی دماغ کی بدولت اقتدار سے چمٹے ہوئے حکمرانوں کو اس طرح اپنے جال میں پھنسایا تھا کہ حکمران اپنا سارا دھن دینے کے بعد بھی ان کے مقروض ہو گئے تھے، جن کو پھر سرے عام پھانسیاں دی گئی تھی۔ عوام کا اس قدر قتل کیا گیا تھا کہ فلسطین، عراق، افغانستان اور بنگال میں 3 کروڑ سے زیادہ افراد کو پھانسیاں اور سرے عام قتل کیا گیا تھا، جبکہ صرف ہندوستان میں ہی 1,80,00,000,000 افراد کو موت کی نیند سلا دیا گیا تھا، جس میں ہندوستان کے وہ بادشاہ بھی شامل تھے جنہوں نے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہ سنی تھی۔ مغل بادشاہوں کے دور میں زراعت پر 40% ٹیکس عائد تھا، جسے برطانوی حکومت نے یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی نے 60% کر دیا۔ ملک پر اس کے علاوہ اتنے ٹیکس لگا دیے گئے تھے کہ لوگ کھانے پینے کے لیے اپنے بچوں کو بیچنے اور عورتیں اپنی عزتیں بیچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ملک کے اندر مصنوعی قحط پیدا کیے گئے تھے۔ قحط کے دنوں میں مغل حکومت ٹیکس معاف کر دیا کرتی تھی، جبکہ برطانویوں نے اس ٹیکس کو اس قدر بڑھا دیا کہ لوگ فاقے سے یوں مرنے لگے جیسے ایٹمی حملے سے جاپان میں اموات واقع ہوئی تھی۔ برطانویوں کی ہندوستان پر حکومت سے پہلے 2000 سالوں میں صرف 17 دفعہ قحط پڑا تھا، جبکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے صرف 120 سالہ دور میں 34 بار قحط پڑا تھا۔ 16ویں صدی عیسوی تک جو برطانیہ کپڑا تک خریدنے کے لیے ایشیا کا رخ کرتا تھا، 18ویں صدی عیسوی میں وہی برطانیہ ایشیا کو کپڑا سپلائی کرنے والا ملک بن چکا تھا۔
बरतानिया का कपड़ा घटिया तरीन कपड़ों में शुमार होता था, जबकि एशिया का कपड़ा बेहतरीन कपड़ों में। दोबारा हिंदुस्तान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल न कर ले, इसी डर से इस दौर में नजर आने वाले हर जुलाहे को मार दिया गया या इसका अंगूठा काट दिया जाता था ताकि वो कपड़ा ना बुन सके। आज दुनिया में इंसानी हमदर्दी के गुण गाने वाली इन तंजीमों के अगर माजी को देखा जाए तो हो सकता है कि इनकी बुनियादों में हमारे आबाओ अजदाद का खून दफन हो। अंग्रेजों ने इस शातिर अंदाज से हिंदुस्तान पर कब्जा किया था जिसकी मिसाल ढूंढने से भी नहीं मिलती। मैं आपको बरतानिया के इन 4 ममालिक के बारे में भी अलग अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा और बरतानवी दौरे हुकूमत की भी वीडियो बनाकर तफसील से मुकम्मल तौर पर आगाह करूंगा, जिससे आपको इन लोगों के बारे में वो सब मालूम हो जाएगा जो आप लोग अब तक इनके बारे में नहीं जानते थे। बरतानवी सल्तनत का आगाज भी आयरलैंड की सरजमीन से ही हुआ था और सबसे पहले सल्तनत बरतानिया से अलहदगी भी आयरलैंड ने ही हासिल की थी, जिसके यके बाद दीगरे तमाम ममालिक एक एक करके सल्तनत बरतानिया से आज़ादी हासिल करते गए। बरतानिया का मुकम्मल नाम मुत्तहिदा मुमलकत बरतानिया उज़्मा और शुमाली आयरलैंड है, जबकि अंग्रेज़ी में इसका मुकम्मल नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड है। लेकिन इसे अंग्रेज़ी में यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, जिसे लोग अक्सर यूके के नाम से पुकारते हैं, जबकि उर्दू में सिर्फ बरतानिया कहा जाता है। बरतानिया आबादी के लिहाज से यूरोपीय यूनियन का तीसरा बड़ा मुल्क है। बरतानिया अक़वाम मुत्तहिदा और नेटो का बानी रुकन और सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन है। बरतानिया दुनिया की बड़ी बड़ी जोहरी ताकतों में से एक शुमार होता है। सल्तनत बरतानिया तो अपने ज़वाल का शिकार हो गई, अंग्रेज़ भी मकबूजा इलाके छोड़कर वापस अपने घरों की राह लिए, मगर अपनी मादरी ज़ुबान अंग्रेज़ी के आसार सारी दुनिया में छोड़ गए हैं और आज के इस दौर में आलमी रवाबत कायम रखने के लिए इस ज़ुबान का इस्तेमाल ज़रूरी समझा जाता है। दुनिया की 1 अरब से ज़्यादा आबादी अब अंग्रेज़ी को अपनी पहली ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। बरतानिया में अगर कोई 100 साल की उम्र तक पहुंच जाता है तो उसे मलका की तरफ से खसूसी कार्ड से नवाजा जाता है। बरतानिया में हर 5 साल से बड़े बच्चे को घर में या किसी भी प्राइवेट जगह पर शराब पीने की इजाज़त हासिल है। इंग्लैंड का दारुल हुकूमत ही बरतानिया का दारुल हुकूमत है और इसी शहर को बरतानिया के सबसे कदीम, बड़े और तारीखी शहर होने का भी एजाज़ हासिल है। 6 अप्रैल 2010 से पहले तक गुलाम बनाना, गुलाम खरीदना और ये सब अवामल बरतानिया में कानूनी थे, मगर 2010 के बाद से इन सब कामों जैसे गुलाम बनाए रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। एक ज़माने में हिंदुस्तानियों को दरख्तों और पहाड़ों से लटका लटका कर फांसियां देने वाले इन अंग्रेज़ों को फांसी देना उस वक्त बुरा लगा जब 1950 में एक आदमी को अपनी बीवी और बेटी के कत्ल पर झूठी फांसी दी गई थी। तब से बरतानिया में फांसी देना गैर कानूनी हो गया था। बरतानिया के बारे में एक दिलचस्प हक़ाइक़ ये भी है कि आपको बरतानिया में किसी की वफ़ात पर रोने वाले भी किराए पर मिल जाएंगे। बरतानिया की सरकारी कोई ज़ुबान नहीं है, जबकि अंग्रेज़ी अमूमन राइज है। बरतानिया की करेंसी को बरतानवी पाउंड कहा जाता है, जो 1 पाउंड पाकिस्तानी 150.58 रुपयों के बराबर है। बरतानिया का कालिंग कोड +44 है। बरतानिया का डोमेन नेम .uk है। अगर वक्त की बात की जाए तो वक्त के लिहाज से बरतानिया पाकिस्तान से 5 घंटे पीछे है। बरतानिया का पासपोर्ट दुनिया के तीसरे ताकतवर तरीन पासपोर्ट होने का भी एजाज़ रखता है, जिसकी मदद से आप 159 ममालिक और 14 बरतानिया के मकबूजा इलाकों में
बगैर वीज़े के सफ़र कर सकते हैं। बरतानिया दुनिया का पहला मुल्क है जिसने 3 आदमियों के डीएनए के मिलाप से बच्चे को जन्म देने की इजाज़त दे दी है। बरतानिया की कुल आबादी में 87.1% अंग्रेज़ यानी गोरे लोग, 7% एशियन लोग, 3% अफ्रीकी लोग, जबकि बाकी तमाम ममालिक से थोड़ी थोड़ी तादाद में काम काज के सिलसिला में वहाँ जाकर मुस्तकिल बसने वाले लोग हैं। बरतानिया की आबादी में 59.5% मसीही लोग, 5% मुस्लिम, 1.3% हिंदू, 0.4% यहूदी, 1.5% दीगर मज़हब के मानने वालों के अलावा एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते। बरतानिया में रहते हुए आप स्काइप के ज़रिए बरतानिया के तमाम टोल फ्री नंबर्स पर मुफ्त कॉल कर सकते हैं। बरतानिया एक ऐसा मुल्क है जिसके तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी आयद है कि वो 1 घंटे में 12 मिनट से ज़्यादा कमर्शियल्स प्ले नहीं कर सकते। बरतानिया में अगर 50 साल से कम उम्र के अफराद की अमवात वाक़या होती है तो ऐसे मरने वाले ज़्यादा अफराद की वजह मौत खुदकशी होता है। बरतानिया वो वाहिद मुल्क है जिसके डाक स्टैम्प पर मुल्क का नाम नहीं होता है। बरतानिया का टीवी चैनल बीबीसी कोई भी कमर्शियल प्ले नहीं करता, बल्कि बीबीसी को अवाम की जानिब से टीवी टैक्स की मद में काफ़ी इमदाद मिल जाती है। लंदन में इंडियंस लोगों के इतने ज़्यादा होटल्स हैं कि अगर उनकी तादाद का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो इंडिया के शहर मुंबई और दिल्ली से कहीं ज़्यादा होंगे। पाकिस्तानियों की भी एक बड़ी तादाद वहाँ होटल्स बनाए हुए है। बैनुल-अक़वामी एक होने वाले सर्वे के दौरान ये नतीजा अखज़ किया गया था कि दुनिया में जिस कदर छोटे बच्चे बरतानिया, इटली और कनाडा में रोते हैं, दुनिया के किसी मुल्क में इतना नहीं रोते। बरतानवी पाउंड दुनिया की वो वाहिद और कदीम करेंसी है जो पिछले 1200 सालों से इस्तेमाल होती चली आ रही है। कहा जाता है कि दुनिया में बहुत सी खेलों का आगाज़ बरतानिया से हुआ था, जिनमें फुटबॉल, क्रिकेट और रग्बी नुमायां हैं। ये खेलें बरतानिया में आज भी बड़े शौक से खेली जाती हैं। बरतानिया की क्रिकेट टीम यूनाइटेड किंगडम नहीं बल्कि इंग्लैंड के नाम से अपना वजूद रखती है। इनके अलावा रग्बी यूनियन, गोल्फ, बॉक्सिंग, नेटबॉल और दीगर कई खेलें बड़े शौक से खेली जाती हैं। जहां पर दीगर शोबे बरतानिया की आमदनी में इजाफे का बाइस बन रहे हैं, वहीं सियाहत का शोबा अपना एक अलग मुकाम बनाए हुए है। 2016 के अदादो-शुमार के मुताबिक बरतानिया में 3 करोड़ 73 लाख से ज़्यादा गैर मुल्कियों ने विज़िट किया, जिन्होंने 25 बिलियन अमरीकी डॉलर बरतानिया में खर्च किए। अब इनसे हासिल होने वाली आमदनी का अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। दोस्तों, ये थी बरतानिया यानी यूनाइटेड किंगडम के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक मुख्तसर सी वीडियो। बरतानवी दौरे हुकूमत, बरतानिया के वीज़े के हसूल और बरतानिया में मौजूद इन 4 ममालिक की आप लोगों को अलग अलग से तफसीली वीडियो के ज़रिए वजाहत करूँगा। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ व अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर ज़रूर शेयर कर दें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन भी प्रेस कर दें।